A very good evening and a very warm welcome to Victoria Memorial Hall. We are proud to present Kolkata Ki Jal Katha, a musical Dastan Goi of a city's flowing heritage by the East India Dastan Gois. The program has been organized in collaboration with Living Waters Museum. We wish you all have a fabulous evening, and I request our Secretary and Curator Sri Anurag Kumarji to please come and present a welcome address. Good evening to all of you for this very pleasant evening at Victoria Memorial Hall. This is our pleasure to host this program called Dastan Goi, which is in association with the Living Water Museum. And as the name suggests, it is going to be something about the story of water in the city of Kolkata. And you all know how deeply Kolkata is connected to water. Uh, well, India has got the tradition of oral communication, not from today, but from the Vedic time. We all know that the lot of our very famous literatures have been passed on from one generation to another through oral communication. And this has continued ever since. Even now, if you go to many of the institutions, the knowledge is being passed from one generation to another through oral communication. During medieval time, this term, Dastan Goi, which is basically an Urdu term, Dastan means story, and Goi means, it's not telling, it's kind of gossip, if I may say so. So that is how this term has evolved, and this tradition of Dastan Goi is very popular in North India, particularly in Delhi and Lucknow and that region. I'm glad to see that this event is going to happen in Kolkata. And I'm sure that the Dastan Goi, the performance of Dastan Goi will be a unique experience for people who have come here today, and you will enjoy this event thoroughly. Thank you very much. Thank you so much, sir. I now invite Sukrit Sen from the Living Waters Museum to tell us more about today's program. Thank you so much. That was indeed a very warm welcome. Um, I speak on behalf of our director, Dr. Sara Ahmed, who hasn't been able to make it because of the Indigo fiasco. And I made a joke to her saying that our office is also pretty much like that. We lack people. I'm the only one who looks after the Living Waters Museum with some very young people, and they're all here, and they're all you, because that is what we believe in. We are you, you are us. The Living Waters Museum is an initiative that was started in 2017 with the idea to not just think about our waters or protect our waters, but to really enjoy our waters. And the main kind of story that we have for you is to really know about the surrounding waters and to really celebrate it. And we are very, very lucky and fortunate to have the Victoria Memorial Hall as our partner today and giving us this beautiful venue, which is not just a venue, but itself has so much history, not just about the building, but about its waters as well. We'll be talking about it. So please hold your seats, and the next 75 minutes that you all will have with us is all going to be about enjoying and really looking at the waters with a different perspective. So thank you all for being here on a Monday evening. We were really wondering whether we'll be able to, make this a grand success or not. But like I said, Living Waters Museum and the Victoria Memorial and our heritage is not just about me and you. It is about us. It is the collective that can really make a difference. Thank you so much and enjoy the show. Presenting to you, Kolkata Ki Jal Katha. Just requesting everyone in the audience, please put your mobile phones on silent or on flight mode.
पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे में अव्वल कलम, सरे लौह पर रख बयाज़े जबी, कहा दूसरा कोई तुझसा नहीं। सबों का वही दीन और ईमान है, ये दिल है तमाम और वही जान है, किसी से बरावे न कुछ काम जान, जो वो मेहरबा हो तो कुल मेहरबान। अगरचे यहाँ क्या है और क्या नहीं, अगरचे यहाँ क्या है और क्या नहीं, पर उस बिन तो कोई किसी का नहीं, पर उस बिन तो कोई किसी का नहीं। कलम गो ज़बां अपनी लावे हजार, कलम गो ज़बां अपनी लावे हजार, लिखे किस तरह हमदे परवरदिगार, लिखे किस तरह हमदे परवरदिगार। तो गुलगुना कशारे आरज़े शाहिदे बयां इस तरह फरमाते हैं कि ये कथा शब्द जब अंग्रेजों के पास पहुंचता है तो बन जाता है कैथारसिस पूरी तरह से। और आज हम ऐसी ही एक अभिव्यक्ति को यहां पर इकट्ठा करने के लिए आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और आज मां विक्टोरिया की समाधि पर हम अपने दुख बताएंगे, अपने राजों का पर्दाफाश करेंगे और हम कला और संगीत से उस जगह पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां तक सिर्फ हमारा तसव्वुर, हमारी इमेजिनेशन ही पहुंच सकते हैं। और उससे पहले आप लोगों से इल्तिजा कि अपने फोन को तो आप फरामोश नहीं कर सकते तो खामोश जरूर कर लें, ताकि आपके लुत्फ, आपके मजे में, आपके तसव्वुर में वो दाखिल ना हो सके, क्योंकि मोहब्बत भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। मोहब्बत भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, बेअदब बेमुरव्वत। तो स्वागत है आप सबका अदब और मोहब्बत के इस शहर कोलकाता की इस जल कथा में। तो अपने सारे डिस्बिलीफ, जी हां डिस्बिलीफ, सस्पेंड कर दे, क्योंकि आज हम जो भी कहेंगे झूठ कहेंगे और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि झूठ आवरण है, कपड़ा है, लिबास है, गिलास है। कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, कि यहां लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। मुझे गिलास बढ़ा दे पानी कम कर दे। मुझे गिलास बढ़ा दे पानी कम कर दे। जी हाँ, पानी हमारे वजूद का 70%। आज हम अपने वजूद के गिलास से उस 70% को निकालकर अपने वजूद को गंगा सागर तक ले जाएंगे और वहां से थोड़ा सा पानी लेकर आएंगे और इस हुगली नदी पर एक नया शहर बसाएंगे, नाम वही कलकत्ता, कोलकाता, कैलकाटा। ओए कोलकाता। अच्छा जी, हटाइए जी, नाम में क्या रखा है, मियां शेक्सपियर भी कहे गए हैं व्हाट्स इन अ नेम। तो पानी जो है वो तो अपनी शक्ल आराम से बदल लेता है, अपनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। अजी शहर छोड़िए, बस ये एक इमारत, ये एक इमारत, इस एक इमारत से ही तो गंगा, जमुना, इंडस और कृष्णा ये सब बहती हैं। और मां विक्टोरिया की समाधि, ये समाधि इस शहर की शान है, अंग्रेजों के अच्छाई की अव्वल पहचान है, और उन अंग्रेजों की कि जिन्होंने इस मुल्क को तकसीम किया, पर जब वो यहां आए तो ब्रिज बनाने लगे। यहां आकर शिव भी भूतनाथ और गंगा भी गंगा सागर हो जाता है, और ये शहर जो है
कलकत्ता है। ये शहर के जो कलकत्ता है, जो फितरत से अलपत्ता है। यहाँ लफ्ज जहाँ टकराते हैं खुद ही कविता बन जाते हैं। यहाँ हर मजहब के मानी है। विक्टोरिया अब भी रानी है। यहाँ हर एक बात पर चंदा है। यहाँ फुर्सत भी एक धंधा है। यहाँ शाम सुबह से ढलती है। यहाँ चांद की बर्फी मिलती है। तो सवार हो जाइए मदोन माझी की प्यारी सी मयूर पंखी नाव में ख्वाबों के इस सफर के लिए। কোন মিস্ত্রি নাও বানাইলো আরে কেমন দেখা আরে ঝিলমিল ঝিলমিল করে রে ময়ূর পঙ্খী নাও ঝিলমিল ঝিলমিল করে রে ময়ূর পঙ্খী নাও আরে হারা সেটা সুবের বেলায় কার পানে কে চায় ওরে শাবাশ শাবাশ আরে হারা সেটা সুবের বেলায় কার পানে কে চায় আরে মদন মাঝি বড় মাঝি কত নাও আয় ঝিলমিল ঝিলমিল করে রে ময়ূর নাও सारी गाए भाटी बाए कर तालो बाजाओ ओरे शाबाश शाबाशियो अरे सारी गाए भाटी बाए कर तालो बाजाओ अरे पाशेर माझी हाल धरियो इमानेर बैठाय झिलमिल झिलमिल करे रे मयूर पঙ্খী नाও झिलमिल झिलमिल करे रे मयूर पঙ্খী नाও हमारी नाव हवा से बहती हुई उस शख्स की समाधि पर पहुंचती है जिसने इस गांव में अपना शहर बसाया। जी हाँ, श्रीमान जोब चाणक। जी हाँ, तो गुलगुना कशान यार शाहिद बयां इस तरह फरमाते हैं कि उस समाधि से यक बयक जोर की एक चीख निकली और आसमान तक पहुंची। चाणक की समाधि से उसके सुराख से धुआं बहने लगा कि जैसे किसी जिन की आमद हो कि शेर की आमद है, किरण कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेर कफन कांप रहा है। वो साया लहराता हुआ सरसराता हुआ जंजन दंदन करते हुए बाबू घाट पहुंचा और वहां बारिश शुरू हो चुकी थी। जोब चार्नोक हैरान परेशान बाबू घाट के किनारे पर हुगली नदी में किसी माझी का इंतजार कर रहे थे। रात के करीब 3 बज रहे थे। तभी एक कंकाल नाव चलाता हुआ किनारे पर आया। जोब चार्नोक उस नाव पर सवार हुए और तैरते हुए शूतानुटी की ओर चले, जहां उन्होंने अपनी पत्नी मरिया को पहली बार देखा था, जब वो सती होने वाली थी और चाणक ने उसकी जान बचाकर उससे शादी कर ली। अपना इस गांव को अपना घर, अपना शहर बनाया और पूरी जिंदगी इस शहर में अपनी मरिया के साथ गुजार दी। आज उस शूतानुटी के घाट से फिर से कोई चीख सुनाई देती है, जैसे कि चाणक उस दिन बचा ना पाए हों अपनी मरिया को। नाव शूतानुटी के किनारे पर पहुंचती है। चार्नोक दौड़ते हुए उड़ते हुए उस जगह पहुंचे, पर देर हो चुकी थी। मरिया के आसपास आग का घेरा था। चार्नोक ने पुरजोर कोशिश की मगर बहुत देर हो चुकी थी। जब तक अजला चाणक मरिया तक पहुंचता
वो जल के राख हो चुकी थी। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख जस्तजू क्या है। कुरेदते हो जो अब राख जस्तजू क्या है। तभी आसमान से देवी की आवाज आई। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ। इस शहर पर कोई खतरा है, कोई अजाब आने वाला है। सुना है रॉबर्ट क्लाइव ने एक सुरंग बनाया है और दमदम के क्लाइव हाउस में एक सुरंग बना रहा है। वो शैतान के सारे पूर्वजों को पाताल से निकालने वाला है। वो विक्टोरिया मेमोरियल पर हमला करेगा और इस शहर पर कब्जा कर लेगा। अगर अपना इतिहास बचाना चाहते हो तो इस शहर की पहचान ढूंढो, इस शहर का वजूद तलाशो। नरक चतुर्दशी के दिन विक्टोरिया मेमोरियल पर हमला होने वाला है। हुगली के रास्ते गंगा सागर तक जाओ। तुम्हें इस शहर को बचाने का पहला सुराग वहीं पर मिलेगा। जल्दी जाओ, आज इस शहर में एक बादल फटने वाला है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कलकत्ता का शहर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो अचानक गंगा सागर के किनारे खड़ा है और दूर दूर तक बस खामोश समंदर दिखाई देता है। मंजिले ख्वाब है और महवे सफर पानी है। मंजिले ख्वाब है और महवे सफर पानी है। आंख क्या खोली के ताहद नजर पानी है। आंख क्या खोली के ताहद नजर पानी है। इश्की नाराए लगाओ दोरी, इश्की नाराए लगाओ दोरी, कोथाहे दयाल कांडारी। तुमी हे कोहरुना सिंधु, অধম জনারো বন্ধু, দাও হে পদারো বিন্দু, যাতে তুফানো তরিতে পারি, যাতে তুফানো তরিতে পারি, কোথাহে দয়াল কান্ডারি। ডুবাও ভাষাও আজকে তোমার, এ জগতে কেউ নাই আমার। লালন বলে দোহাই তোমার, নামের ভেরম যাবে তোমারি, নামের ভেরম যাবে তোমারি, কোথাহে দয়াল কান্ডারি, কোথাহে
কোথায় जोब चार्नोक गंगा सागर के सामने खड़े हैं। गंगा सागर में भागीरथ के पूर्वजों की सारी राख भरी थी। भागीरथ ने रघुवंश के पाप धोने के लिए ही तो गंगा को बुलाया था। उन पूर्वजों को मुक्ति का मार्ग बताने वाले कपिल मुनि आज भी यहां मौजूद हैं। जब क्लाइव पाताल की गहराइयों तक जाने पे आमादा है, तो चार्नोक को कोई ऐसी तपस्या करनी होगी जो महाराज भगीरथ से भी 4 गुना कठोर हो। इस बार केवल गंगा ही नहीं, यमुना, कृष्णा और इंडस नदी भी खतरे में थी। स्वामी विवेकानंद ने कपिल मुनि के बारे में कहा है कि इज द फादर ऑफ आवर साइकोलॉजी। वो कहते हैं कि हर इंसान को पर्सनल खुदा इजाद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगर कुदरत में कुछ ऐसे घुल मिल जाएं, तो हम खुद अपने खुदा बन सकते हैं, पर नहीं, इंसान तो पूरी शिद्दत से उस कुदरत को ही खत्म करने में लगा है। ये सुंदरबन के जंगल जो तूफानों से शहरी इलाकों की हिफाजत करते हैं, उन जंगलों को इंसान ने खत्म कर दिया। कपिल मुनि ने कहा कि यह समंदर तभी ठहर सकता है कि जब सुंदरबन के जंगलों को महफूज किया जा सके। उन्होंने जोग चार्नक को आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ, सुंदरबन में तुम्हें बोन बीबी मिलेंगी और वो ही आगे का पथ प्रदर्शित करेंगी। इतने में ही सुंदरबन के किसी अंधेरे कोने से दक्षिण राजा के दहाड़ने की आवाज आती है। वो बाघ इंसानी मांस के लिए तड़प रहा है। जब इंसान इस जंगल को काटने लगे तो दक्षिण राजा ने इंसानों का रक्त पीना शुरू कर दिया। अब ये जंगल पूरी तरह खत्म होने वाला है। दक्षिण राजा क्लाइव की हवेली से निकलेगा और इस बार किसी को भी माफ नहीं करेगा। विक्टोरिया पे कब्जा करने के बाद दक्षिण राजा कलकत्ता से इंसानी कौम का नामो निशान मिटा देगा। पर डरिए मत, जोब चार्नक इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। दक्षिण राजा की दहाड़ से बादल फट गया था। द्वादशी के उस दिन कोलकाता में पानी भरना शुरू हो गया था। याद है ना वो रात? वो बारिश की प्यारी सी आवाज जो धान की फसल का संदेशा लेकर आती थी, आज इंसानी नस्ल के खत्म होने के गीत सुना रही थी। पर यही तो ये शहर अलबत्ता है। काल से भी आगे कलकत्ता है। जोब चार्नक ने सुंदरबन के पेड़ों से, पक्षियों से, फूलों से, जानवरों से और इंसानी रूहों से इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की कि वो बोन बीबी का आह्वान करें। वो देवी जो कुदरत और इंसान के रिश्ते की बुनियाद रखती है। सुंदरबन की महादेवी बोन बीबी। বনবিবির পায়ে Can I have you all sing with me or just give me a beat? ব্যাগ ডাকে ঘন ঘন শীঘ্র হবে বৃষ্টি, যেন যদি হয় চৈতে বৃষ্টি তবে হবে ধানের সৃষ্টি। জ্যৈষ্ঠতে তারা ফোটে তবে জানবে বর্ষা হবে, গাছে গাছে আগুন জ্বলে তবে জানবে ঘনায় বল। ব্যাগ ডাকে ঘন ঘন শীঘ্র হবে বৃষ্টি, যেন যদি হয় চৈতে বৃষ্টি তবে হবে ধানের সৃষ্টি। জ্যৈষ্ঠতে তারা ফোটে তবে জানবে বর্ষা হবে, গাছে গাছে আগুন জ্বলে তবে জানবে ঘনায় বলে। বনবিবির পায়ে রে ওঠে বুনো রোদের ফুল, তোমাতে শরীর পুরে কিষানির গামে ভেজা মুখ।
জল মেঘের বৃষ্টি ঝরে আদিবাসী কোন গ্রামে তোমার কান্না আমার কান্না ঝিরি পথ হয়ে নামে चोप चार्नोक जंगल के इस गीत में डूब ही गया था कि एकदम से आसपास चारों ओर अग्नि के फूल खिलने लगे। उनमें से यकबयक चिंगारियां निकलने लगी और पूरा जंगल रोशन हो उठा। उन अग्नि फूलों पर पैर रखते हुए बोन बीबी चार्नोक के सामने आई और उसे कहा, मैं जानती हूं दक्षिण राय को फिर से जागृत किया गया है, पर ये बस एक शुरुआत है। रॉबर्ट क्लाइव पाताल के आखिरी कोने तक जाएगा। वो दुनिया के हर एक राक्षस को इस शहर में ले आएगा। इंसान तो क्या, इस शहर में देवता भी नहीं घुस सकेंगे। ये तेंदुआ तुम्हें चित्तेश्वरी दुर्गा के पास ले जाएगा। पहले वो इलाका भी सुंदरबन का ही हिस्सा था, पर फिर इंसानों ने शहर बसाने के लिए इसके जंगल ही खत्म कर दिए। इतनी ही देर में जंगल की गहराई से एक तेंदुआ निकला। जो अचानक उस पर सवार और पलक झपकते ही वो चित्तेश्वरी दुर्गा के मंदिर में थे। वो तेंदुआ उस मूर्ति के पास ही स्थापित हो गया और फिर एकदम से हर तरफ अंधेरा छा गया। अचानक घबरा गया। वैसे ही मंदिर में एक आवाज गूंजी, कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? I am a loyal servant of the Queen and the Crown, and my only intention here is to save Victoria Memorial and this city. It is my duty to save this city, and I am the founding father of the city. क्या? Well, some people still believe so. I carry orders from Bon Bibi to meet Goddess Chitteshwari, to seek her guidance. But who are you? चित्तेश्वरी दुर्गा से मिलने आए हो और चित्ते डाकात को नहीं पहचानते? क्लाइव के मंसूबे की खबर मैंने भी सुनी है। मैं तो नाम का डकैत हूं, असली डकैत तो क्लाइव बाबू हैं। मैं चाहूं तो अभी उस क्लाइव की हवेली में घुसकर उसका सारा खेल बिगाड़ सकता हूं। By Jove! Then what's stopping you? Why don't you do it? तुम्हें क्या लगता है हनुमान रावण को खुद नहीं मार सकते थे क्या? अरे हम तो देवी के भक्त हैं। क्लाइव जिस राक्षस को भी पाताल की गहराइयों से निकाल ले, उसका अंत करने देवी स्वयं आएंगी। जैसे उस दिन वो मेरे ख्वाब में आई थी और मुझसे कहा था, चित्ते ओ चित्ते, तुमने आज तक अमीरों को लूटा है पर गरीबों की मदद भी की है, इसलिए तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा। कल सुबह होने से ठीक पहले तुम आदि गंगा के किनारे पर आना। वहां तुम्हें नीम के पेड़ का एक जत्था नजर आएगा, उस पर मेरी मूरत तराशना। अंत में जब तुम मेरे आंखें तराशोगे, मेरी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और उस दिन से चोखू दान का रिवाज शुरू हुआ। अब चाणक्य 3 पूर्वजों को जागृत कर चुका था, कपिल मुनि, बोन बीबी और चित्तेश्वरी दुर्गा। अब वक्त था इस शहर के भीतर जंग की तैयारी करने का। चित्ते डकैत ने चाणक्य को चितपुर रोड का रास्ता दिखाया। ये सड़क तुम्हारे बनाए कलकत्ता से भी ज्यादा पुरानी है चाणक्य। ये चित्रकारों की सड़क है। मेरे जमाने में सारे डकैत काली और चामुंडी की पूजा करते थे, पर जंगल में छुप कर रहते थे। मुझे देवी ने मां दुर्गा के रूप में दर्शन दिए और कहा कि ऐसी सड़क बनाओ जो सीधे काली घाट तक पहुंचे। मैं आज भी इस सड़क की रखवाली करता हूं। But what should we do now? The city is going to end on this Narak Chaturdashi. If we do not do something about it, Clive will take over Queen Victoria and he's
resurrecting many ancient demons to change the history of this entire nation. The city of joy will become a living hell. जानते हो चाणक्य, मां कभी किसी में भी भेदभाव नहीं करती। तुम अगर विक्टोरिया को मां मानते हो तो उसकी पूजा करो, वो शहर फिर से जागृत करो जो तुमने कभी बसाया था। नरक चतुर्दशी के दिन जीवन और मृत्यु के सभी द्वार खुल जाते हैं। वो अधर्म का इतिहास जागृत करेगा, तुम धर्म के 14 दिए जलाओगे। जाओ जाओ और उस शहर को ढूंढो जो कभी तुमने बसाया था। जाओ उस शहर को ढूंढो। चित्तेश्वरी मंदिर के द्वार खुल गए। सामने चितपुर की सड़क पर मां काली तक पहुंचने का रास्ता अब भी कठिन था। चाणक्य उस सड़क पर निकल गया और चितपुर रोड पर रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर के सामने आकर रुका। वहां ही छत से उड़ता हुआ एक पुर्जा उनके हाथों में आ गिरा। उस पुर्जे पर कवि गुरु की कविता लिखी थी। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. उसने कागज पलटा तो उस पर कवि गुरु का संदेश था। जब जुल्म की इंतहा हो जाए, जब और कुछ भी न समझ आए, जब हार मानने का मन करे, इस कविता को पढ़ लेना। क्या पता स्वयं निर्भयता की देवी काली जागृत हो जाए। चाणक्य कलकत्ता में अंग्रेजी हुकूमत की रूह तलाशता हुआ लाल डिगी पर पहुंचा, जिस तालाब के पानी ने अंग्रेजों को सींचा था, उनकी हुकूमत को सींचा था। वो हाथों की ओप में पानी भर के पी ही रहा था तो उसे तालाब में वो जंगली फूल दिखाई दिया, वाटर हायसिंथ, जिसको बंगाल का टेरर भी बुलाया जाता है। वो फूल देखते ही देखते पूरे तालाब में भर गया। चाणक्य ने एकदम से वॉरेन हेस्टिंग्स को पुकारा। दरअसल ये कहानी शुरू होती है उस जहाज से जिस पर 37 साल का वॉरेन हेस्टिंग्स दूसरी बार बर्तानिया से हिंदुस्तान का सफर कर रहा था। जब उसने पहली दफा 22 साल की एक खूबसूरत दोशीजा जर्मन लड़की को देखा, दिल जिगर को घायल हुए ना 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 ना। अब देखिए इश्क में तो आदमी कुछ भी कर देता है। तो हेस्टिंग्स ने अपनी प्यारी मैरियन के लिए साउथ अमेरिका का एक नायाब फूल मंगवाया जो पानी के ऊपर तैरता है, वाटर हायसिंथ। इसे बंगाल में कोचुरी पाना भी कहते हैं। चाणक्य समझ गया कि क्लाइव ने हमला शुरू कर दिया है। हेस्टिंग्स का यह तोहफा इतनी तेजी से पानी में फैलता है कि पानी के सारे रास्ते बंद हो जाएं। पहला हमला कोलकाता के पानी पर हुआ है। सारे तालाबों पर यह फूल काबिज हो रहा है। शहर में चारों तरफ पानी ही पानी होगा और फिर भी लोग प्यास से मरेंगे। यह अजाब उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगा। वो तुरंत वॉरेन हेस्टिंग्स की तलाश में निकला। ये एक मोहरा पूरा खेल बदल सकता था। क्लाइव ने हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया था और इस बार वो हेस्टिंग्स के फूल से कलकत्ता के पानी पर कब्जा करना चाहता है और फिर पूरे कलकत्ता पर या पूरी दुनिया पर। इतिहास जब खुद को दोहराता है तो और भी जालिम हो जाता है। हेस्टिंग्स एक रईस जमींदार के बाग में अपनी जर्मन शरीक हयात मरियन के साथ बैठे उससे दीदे लड़ा रहे थे, मानी की नैन मटक्का कर रहे थे और उसे बड़े ही रूहानी अंदाज में कह रहे थे, Hey, to me, Kadir Kuler Bow. আরে যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ, সঙ্গে নেই তো কেউ, তুমি কাদের কুলের বউ গো, তুমি কাদের কুলের বউ। যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ, সঙ্গে নেই তো কেউ, তুমি কাদের কুলের বউ।
family belong to? Madam, whose family belong to? যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে, আরে যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে, ফিরতে হবে অবশেষে। যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে, ফিরতে হবে অবশেষে। আরে কলসি তোমার যাবে ভেসে, লাগলে জলের ঢেউ। আরে কলসি তোমার যাবে ভেসে, লাগলে প্রেমের ঢেউ। ওর ফ্যামিলি বিলং টু, ম্যাডাম ফ্যামিলি বিলং টু। Going, are you laughing, laughing? Going, are you laughing, laughing? You will return crying, crying. Going, are you laughing, laughing? You will return crying, crying. Are down the picture will be going. Wave of love at you. Whose family belong to? Madam, whose family belong to? তুমি কাদের কুলের বউ গো, তুমি কাদের কুলের বউ। इस बीच एकदम से वहां जोब चार्नोक पहुंचा और हेस्टिंग्स पे गरजा। My Lord Hastings, do you not hear the city breathe? She trembles like a child abandoned in the storm and is crying for her keeper. Don't be such an ingrate. Has time wilted the flowers of your memory to such an extent that you don't even remember the numerous things that the crown has done for you? I ask not gold, not praise, but your only support. I know how you feel indebted to Clive. But we are not the ones to go against the very powers that made us. Now it is time to do something for Calcutta. For cities are not saved by crowns alone, but by the steadfastness of men who love them. Also women. Yes. गुड वन। ये सुनकर हेस्टिंग्स का बर्फीला दिल पिघल गया। वो इस शहर से अब भी इश्क करता था, क्योंकि वो इश्क करना जानता था। उसने कहा कि अब उन फूलों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मामला अब मेरे इख्तियार से बाहर है, पर क्राउन के लिए, इस शहर के लिए वो अब मरने और मारने को तैयार था। सामने पाताल का कोई भी राक्षस आ जाए, वो क्लाइव को जीतने नहीं देगा, इस शहर को डूबने नहीं देगा। भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते। हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा? जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा? जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। पर इस जंग के लिए लश्कर तो तैयार करना ही था। हेस्टिंग्स चाणक्य को लेकर आर्मीनियन घाट पहुंचा। दोनों हुगली में आता ज्वार देखने लगे। टेरर ऑफ बंगाल सारे तालाबों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। शहर की रूह के लिए पानी मयस्सर न था, और सामने एक इतनी बड़ी जंग। हेस्टिंग्स ने चाणक्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अजीब सा बात है चाणक्य। ब्रिटानिया यानी कि ब्रिटेन हुकूमत की इब्तिदा और इंतहा, शुरुआत और अंत सब सरहद पे होता है। हमने जाते जाते हिंदुस्तान में सरहद खींची। बंगाल में ये कारनामा हमने 2 बार किए, और न जाने कितना नफरत का सीड्स बीज बोता रहा। ये खूबसूरत गांव हमने बर्बाद कर दिया। पर आज नहीं, आज नो, ये अरमानों से बना आर्मेनियन घाट, राजा इजराइल दी सरहद आज भी आर्मेनियन घाट पे बैठा है, आता है। वो देखो, यानी कि दूसरी सरहद। अंग्रेजों को कोलिकता, गोविंदपुर और शुतानुटी का हक दिलाने का काम ख्वाजा सरहद ने किया था। अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए तो ना इस मुल्क का कायदा जानते थे, ना यहाँ की जबान जानते थे, ना इस तहजीब को जानते थे।
दूसरी तरफ आर्मेनियंस ने पहले ही यहां अपना सिक्का जमा लिया था, इसीलिए उन्हें यहां बसने में और इस शहर को बसाने में आर्मेनियंस ने बहुत मदद की। और इसके बदले अंग्रेजों ने उनके लिए कैलकटा का पहला चर्च बनाया। ये कोलैबोरेशन फिर से दोहराने का वक्त आ गया था। चाणक्य और हेस्टिंग्स ने ख्वाजा सरहद का पीछा किया और दूर से उनको देखते रहे। ख्वाजा की रूह आर्मीनियन घाट से चलते हुए आर्मीनियन चर्च ऑफ नाजरेथ पहुंची। नाजरेथ वो जगह थी जहां जीसस ने अपना बचपन गुजारा था, जहां जीसस का जन्म हुआ था। जो नक्श दो मुझे तुम, खुदा हूं मैं तुम्हारा। कहो किस तरह से आऊं अब तुम्हारे सामने। मरियम ने मुझे गढ़ा था इंसान की शक्ल में। देखते हो जैसे तस्वीर पत्थर की नकल में। ढूंढ लो मुझे तुम उस आखिरी दावत में। एक प्याले में भरी उस बेरहम मदावत में। लटकाओ चाहे मुझको फिर से सलीब पर। रोना हो जब कभी इंसान के नसीब पर। क्या रखा है शक्ल में किसी भी नाम में। कहो किस तरह से आऊं अब तुम्हारे सामने। कहो किस तरह से आऊं अब तुम्हारे सामने। चाणक्य और हेस्टिंग्स हक्के बक्के रह गए। तभी पीछे से एक हाथ हेस्टिंग्स के कंधे पर पड़ा। देखा तो ख्वाजा सरहद खड़े थे। बोले, क्या चाहते हो? हेस्टिंग्स ने उन्हें सब रुदात सुना दी। ये सुनकर ख्वाजा साहब ने कहा कि ख्वाजा साहब खुद एक चिंता में आ गए। ये जंग बस अंग्रेजों की नहीं, पूरी कायनात की है। ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलियन घोड़ों से चलने वाली नायाब ट्रैम मंगवाई और तीनों ट्रैम पर सवार हुए और आचीपुर पहुंचे। टोंग आचू कैलकटा में आए पहले चाइनीज कारोबारी थे जिन्होंने कैलकटा में पहली शुगर मिल बनाई और ऐसे ही शुगर का नाम चीनी पड़ गया। जब टोंग आचू कैलकटा आए तो चीनी के साथ चीनी का इतिहास भी लाए और उनके दिल में बसे उनके इष्ट देव क्वांती, खुदाए रज़्म यानी कि गॉड ऑफ वॉर, जिन्होंने इंसान से बढ़कर खुदा का दर्जा हासिल कर लिया था उनके दिलों में। ख्वाजा ने हेस्टिंग्स को इशारा किया पर हेस्टिंग्स बहुत शर्मिंदा सा था। दरअसल अंग्रेजों ने आर्मेनियंस के लिए तो चर्च बनाया, पर अंग्रेजों के लगाए महसूल यानी कि टैक्स की वजह से चाइनीज लोगों को अपने मंदिरों को भी चर्च बुलाना पड़ा। हालांकि चाइनीज लोगों का ने तिरेती बाजार में मां काली का भी मंदिर बनाया जहां नूडल्स का प्रसाद चढ़ता है, पर अंग्रेजों का यह भेदभाव आज भी उनकी शर्मिंदगी का सबब बन गया है। हेस्टिंग्स आज बुराई के खिलाफ लड़ना चाहता था। वो चाइनीज कौम से इस बात की माफी मांगना चाहता था क्योंकि असली जंग तो पहले जहन के भीतर शुरू होती है। जा जा रे अपने मंदिर वा, जा जा रे अपने मंदिर वा।
हेस्टिंग्स, चार्नोक और ख्वाजा टूंगऑन चर्च पहुंचे। बुद्ध की मूर्ति के सामने चाइना के कई महान योद्धा मार्शल आर्ट्स की मश्क यानी प्रैक्टिस कर रहे थे। उन लोगों के सामने पूरी सेना पर सेनापति यानी क्वांटी, द गॉड ऑफ वॉर, वो पहली मंजिल पर थे। बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठे टूंग आची ने अपनी आंखें खोली और उनकी नजर इन तीनों पर गई। वो सारा मामला समझ गए थे। क्लाइव की सुरंग अब चाइना तक पहुंच चुकी थी। वो दुनिया के सारे राक्षस जगा रहा था। टोंग आचू ने उन तीनों को अपनी तरफ पुकारा और उन्हें लेकर पहली मंजिल पर गए। वो तीनों वहां पहुंचे, देखा सामने खुदाए रज़्म, गॉड ऑफ वॉर क्वांटी की मूरत है कि जैसे वो महान योद्धा इतने सालों से किसी गहरी तपस्या में लीन हो। शायद उसे ईश्वर का दर्जा इसलिए इस शहर में मिला, इस शहर कलकत्ता को इस अजाब से बचा सके। टोंग आचू ने चाइनीज में कुछ मंत्र पढ़े और युद्ध के देवता का आह्वान किया। क्वांटी ने अपने 2 साथियों के साथ एक शपथ ली थी जिसका जिक्र मशहूर चाइनीज ग्रंथ रोमांस ऑफ 3 किंगडम्स में मिलता है कि 3 योद्धा जो अलग अलग जगह जन्मे वो एक साथ मरने की कसम खाते हैं कि इस दोस्ती के बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती। सैकड़ों साल बीत गए, कई हुकूमतें आईं और गईं। चाइना की जमीन से उठकर क्वांटी आज कलकत्ता की जमीन पर पूजे जा रहे थे, पर वो कसम आज भी जिंदा थी। टूंगाची का मंत्र सुनकर सीढ़ियों से बाकी चाइनीज योद्धाओं की रूहें भी पहली मंजिल पर आ गई। क्वांटी की मूर्ति जो कई सालों से ध्यान मग्न थी, उसके हाथ पैर हरकत करने लगे। आज चाइना की वो महान योद्धा अपने 2 साथियों के साथ कलकत्ता को बचाने आ रहा था। और धीरे धीरे जमीन कांपने लगी। तिरट्टी बाजार का हर मंदिर और चर्च गूंजने लगा। चारों ओर घंटियां बजने लगी, बहने लगी और वो मूर्तियां उस मूर्ति पे अपनी आंखें खोली। युद्ध के देवता सामने थे और अब इस शहर को बचाने के लिए इस शहर का पूरा इतिहास जाग रहा था। तिरट्टी बाजार के नगाड़ों की गूंज पूरे कलकत्ता में फैल रही थी। कोलकाता में बसी हर एक रूह जानती थी कि अब वक्त आ चुका है। नरक चतुर्दशी का वक्त होने ही वाला था कि कोलकाता के हर ओर से इतिहास के पन्ने फड़फड़ा रहे थे। कलकत्ता की हवा बोझल थी, हुगली के किनारे बादल जैसे काले फौजदार मंडरा रहे थे। शहर के चारों तरफ आफत का साया घेरा बना रहा था। मालूम होता था जैसे कि इस शहर की सांसें अब गिनती की रह गई हैं कि इस दौरान एक शाही नौका दरिया को चाक करती हुई किनारे पर आई और फिर एक पुकार हुई कि शाह अवध वाजिद अली शाह हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और इससे पहले कि वाजिद अली शाह के पैर जमीन पर पड़ते, एक खादिम जल्दी से भागता हुआ आया उन्हें जूते पहनाने। वाजिद अली शाह अपनी पालकी से उतरकर नाखुदा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। नाखुदा मस्जिद का सहन लोगों से भरा था। इमाम ने उन्हें देखकर कहा, हुजूर, शहर का हाल बहुत बुरा है। आप आए हैं तो शायद खुदा कोई रास्ता निकाले। वाजिद अली शाह ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रास्ता खुदा खुद ही अता करेगा, पर कोशिश करना इंसान को पड़ता है। वो मिंबर के पास पहुंचे, जाकर रुके और पूरी जमात की तरफ देखकर बोले, कलकत्ता सिर्फ इमारतों का शहर नहीं है, ये तहजीब का तलाशगार है। अगर ये शहर भटक गया तो सुबह की रोशनी तक खो जाएगी, भटक जाएगी। आज मैं जंग लड़ने नहीं आया, मैं दुआ और हिम्मत की आग फैलाने आया हूं यहां।
वाजिद अली शाह ने कई सालों बाद ये महसूस किया कि आज ये आवाम ही मेरी फौज है। उन्होंने आगे बढ़कर अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, आओ अपने शहर के लिए दुआ करें। जब जमीन की रूह उठकर आसमान से गुहार लगाती है तो तकदीर भी रास्ता बदल लेती है। लोगों ने एक ही वक्त एक ही लहजे में कहा, आमीन, और मस्जिद का सहन गूंज उठा। डेविड जोसेफ एजरा उस वक्त एजरा स्ट्रीट में नखोदा मस्जिद से थोड़ा दूर बेथल सिनागोग में बैठे अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि जंग शुरू होने वाली है और सारे तालाब टेरर ऑफ बंगाल की वजह से खामोश थे। गंगा सागर उफन रहा था। इस जंग में इन रूहों को पानी कौन पिलाएगा? डेविड सिनागोग में बने मिकवा की तरफ बढ़े। ये पानी जिंदा है, लिविंग वाटर है, मेम हेम है। यहूदी एक खुद मुख्तार कौम है जो ना हुगली नदी के पानी से कोई पानी लेती है ना वेटलैंड से। वो बारिश का पानी संभालते हैं और उसे महफूज रखते हैं, उसे पूछते हैं, और एजरा खानदान का रिश्ता बहुत गहरा है शहर से। सिनागोग के दरवाजे हर उस रूह के लिए खुल गए जो इस जंग में शामिल होने वाली थी। एजरा खानदान अपने मिकवा की रक्षा करने के लिए मुस्तैद रेडी हो गए और फिर आया जंग का आखिरी पहर। 26 एजरा स्ट्रीट के एक खंडहर में चंदन की शाख पर एक आग की लपट उठी। वो आग जो हमेशा जलती रहती है वो कुछ दिनों से बुझी सी थी। वो पारसी आग का मंदिर जो रुस्तम जी कोवस जी ने 1839 में बनाया था और जिसके इनॉग्रेशन में श्रीमान द्वारकानाथ टैगोर को भी बुलाया था, वो मंदिर आज खंडहर हो गया है। पर आज 26 एजरा स्ट्रीट पर बने उस पारसी मंदिर की आग फिर से जल रही है। ये शहर जो हर बात पे जिंदाबाद कहता है वो आज सचमुच मृत्यु के पार जाने वाला था। ये आग की लपट कोलकाता के पुनर्निर्माण की अग्नि थी और अब ये अग्नि पूरे शहर में फैल चुकी थी। शिव का तांडव शुरू होने वाला था। भूतनाथ भी जागृत होने वाले थे। विक्टोरिया का युद्ध आरंभ हो रहा था। मृत्यु का भय उसे सताए, जो जीवन में मरा न हो उसका जीवन भाव शून्य है, मरकर भी जो जगा न हो। जगने के उपरांत जगत के सारे विष पीने वाला, शक्ति को आसक्ति जिससे वह अग्नि के सीने वाला, वह तो चरित्र से भोला है, वह तो चरित्र से भोला है। उसको प्रपंच का ज्ञान नहीं, वह तांडव का क्लिष्ट गीत है, रावण का अभिमान नहीं। वो गर्जन है गिरजा की, वो गर्जन है गिरजा की, वो गंगा की अमर धार, दुर्गा की अभय मुद्रा, वह कामाक्षी का वो श्रृंगार, कामाक्षी का वो श्रृंगार। ओम भूतनाथ भैरवाय नमः। ओम भूतनाथ भैरवाय नमः। ओम भूतनाथ भैरवाय नमः। क्लाइव की सेना मराठा डिच के इलाके तक पहुंच चुकी थी और विक्टोरिया को वर्ल्ड वॉर की तरह गोबर और मिट्टी से रंग दिया गया था। कपिल मुनि, बोन बीबी, चित्तेश्वरी दुर्गा, आर्मेनियन सेना, चाइनीज सेना, खुदाए रस्म, कुआंती, जीसस क्राइस्ट, बाबा भूतनाथ सब विक्टोरिया में इकट्ठे हो चुके थे। और फिर दिल और दुनिया के बीच कोलकाता की रूह को बचाने के लिए शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक था। हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। हमें शायद ये अंदाजा भी नहीं कि रूहानी दुनिया में हमारे बुजुर्ग, हमारे भगवान,
हमारे खुदा न जाने हमारे लिए कितनी जंगें लड़ रहे हैं। बस ऐसे ही शुरू हुआ नरक चतुर्दशी का वो भयानक युद्ध। कपिल मुनि ने शैतान के कई सैनिकों को एक नजर में भस्म कर दिया। दोखिन राय ने पूरे कोयला स्ट्रीट पर उत्पात मचाया हुआ था। जो रूहें उनके पेट चीरकर और उनका रक्त पी रहा था, बोन बीबी ने उस पर हमला किया और देखते ही देखते वो धराशाही हो गया। पॉन्टी ने शैतान के लश्करों को उजाड़ कर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि चारनुक की तपस्या आज रंग ले आई है। विक्टोरिया का ताज आज बच जाएगा। कोलकाता का वजूद जिंदा रहेगा अपने पूरे इस्तराब के और साथ। तभी ऐसा भूचाल आया कि जैसे ये दुनिया खत्म होने वाली। दमदम की ओर से काला धुआं उठने लगा, चारों तरफ अंधेरा छा गया, विक्टोरिया के चारों ओर बिजली कड़कने लगी और फिर क्लाइव हाउस की उस सुरंग में से 1000 फीट का वो राक्षस रक्तबीज उठा और विक्टोरिया की तरफ बढ़ने लगा। सेनाओं के जत्थे उखाड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे कोई तीर या तलवार लगते तो उसके रक्त की हर बूंद उससे एक और रक्तबीज जन्म ले लेता। युद्ध एकदम से पलट गया। ऐसा लगा जैसे इस शहर की आत्मा मरने वाली हो। पूरा मैदान रक्त से भर गया। सारे तालाब लाल हो गए, हुगली का पानी लाल हो गया, गंगा सागर में भी मौत का सुर्ख रंग घुलने लगा। और फिर विक्टोरिया मेमोरियल के ऊपर विराजमान वो परी, द एंजल ऑफ विक्ट्री, जो कोलकाता की निगहबानी करती हैं, उम्मीद की वो आखिरी मशाल, रक्त बीज ने उस पर वार किया और वो परी टूटकर बिरजी तालाब में गिर गई। रक्त बीज का अट्टहास, उसकी हंसी चारों दिशाओं में गूंजने लगी। इस बार बुराई जीत गई, अच्छाई हार गई। क्लाइव ने ये मौका देखकर हेस्टिंग्स की गर्दन काट दी। भूतनाथ ध्यान मग्न हो गए और फिर एकदम से बिरजी तालाब में से एक हाथ निकला, जिसके हाथ में एंजल ऑफ विक्ट्री की मूर्ति निकली है। श्री राम कृष्ण परमहंस तालाब से बाहर निकले। वो बोले, जब दक्षिणेश्वर में गोविंद जी की मूर्ति टूटी तो लोग उसे खंडित बोलकर फेंकने ही वाले थे, पर मैंने मना कर दिया। ईश्वर खंडित नहीं होते, वो तो हर जगह है। जब पत्थर टूटता है तभी तो मूर्ति बनती है। पता है, इस मूर्ति में भी मुझे मेरी मां काली नजर आती है। ये कहकर उन्होंने सामने देखा तो वो भयानक राक्षस रक्तबीज उन्हें बड़े विस्मय के साथ देख रहा था और कहने लगा, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे डरने की क्या जरूरत है, मेरे साथ मेरी मां है। कौन मां? कैसी मां? वही जिन्होंने तुम्हें पिछली बार पाताल की गहराइयों में भेजा था। इतनी जल्दी भूल गए? आज नरक चतुर्दशी है। आज मां काली भूतों की सवारी करती हुई आएंगी। कहां है वो? मैं एक बार उनसे हार चुका हूं, अब दोबारा नहीं हारूंगा। बुलाओ, कहां है वो? हर जगह है, अपने आसपास देखो, उस पौधे में, उस पेड़ में, इनमें, उनमें, इस मूर्ति में। मुझे तो मां विक्टोरिया की मूर्ति में भी मां काली का रूप ही नजर आता है। क्यों चारनोक? मैंने सही कहा ना? अगर पूरे दिल से मां को बुलाओगे तो मां सचमुच आ जाएंगी। आइए मिलकर मां काली का आह्वान करें। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मां विक्टोरिया की मूर्ति से एक नूर निकला। रक्त बीज की आंखें चौंधिया गईं और वो विक्टोरिया पर वार करने की कोशिश करता, पर उसके
किसी भी वार का उस मूर्ति पर कोई असर नहीं हो रहा था और उस मूर्ति में मानो कोई दिव्य शक्ति आ गई हो, जैसे मां काली स्वयं धरती पे उतर आई हो। देखते ही देखते मां विक्टोरिया की आंखें खुली, सुर्ख लाल और वो रक्त बीज उस पर झपटी और तिनके की तरह उसे तोड़कर उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले अपने हाथ पर धरे कपाल में भर दिया उन्होंने उसका रक्त। ये शहर निर्भयता के गीत गाता है, ये शहर मृत्यु के पार जाता है। रविंद्रनाथ के काव्य बचे, नजरुल का गान बचे, सुकुमार की विचित्र दुनिया और नेताजी के प्राण बचे। ये शहर जाग रहा है फिर से, ये कलकत्ता की अंगड़ाई है। रक्त बीज का वध करने फिर काली लौट के आई है। रक्त बीज का वध करने फिर काली लौट के आई है। रक्त बीज का वध करने फिर काली लौट के आई है। काले बादल हट गए आसमान से। श्री राम कृष्ण ने एंजल ऑफ विक्ट्री को विक्टोरिया मेमोरियल के ऊपर फिर से स्थापित कर दिया। कोलकाता, कैलकटा, कोलिकाता, कलकत्ता, काली क्षेत्र नाम में क्या रखा है? व्हाट्स इन द नेम? इस शहर की पहचान इसकी निर्भयता है। चितपुर पर टैगोर के पुश्तैनी मकान से जो चिट्ठी गिरी थी, निर्भयता का यही राग तो गाती है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, मां काली ही तो राह दिखाती है। Ave Maria, চিত্ত যেথা ভয়ে শূন্য উচ্চ যেথা জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহে প্রাচীর জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণ তোরে দিব সর্বরি বসুধারে রাখে না খণ্ড ক্ষুদ্র করি जगाओ मेरा देश, जगाओ मेरा देश, जगाओ मेरा देश, जगाओ ভয় শূন্য where the mind is without fear উচ্চ যেথা শির and the head is held high, জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা where Knowledge is free, যেথা গৃহের প্রাচীর where the world has not been broken up into fragments. আপন প্রাঙ্গণ তলে দিব সর্বরি जगाओ मेरा देश, जगाओ मेरा देश,
So, thank you so much. Like he's gone to sleep. It's been an absolute honor and privilege to be able to present the story of Calcutta in front of all of you. This initiative, the Jalkatha series, really looks at those who don't visit museums. And we try our way to tell these stories as a performance so that you come to enjoy some storytelling, some music, and you actually go back home with information. And thank you all for being such an amazing audience. Let me introduce you to my team, and I'm very lucky that they're just not my team who I share stage with, but also my life. On the Sarod, we have Shomalya Sareswari. On Kathavachan, and maybe have a huge round of applause because he's also the writer of all our plays, Palash Chaturvedi. In fact, every time my work is to talk to people and be like, let's do this Jalkatha, Jaipur ki Jalkatha, Delhi ki Jalkatha, London ki Jalkatha. I'm like, Palash, Every city Jalkatha aa gaya, can you write something? And he's like, okay. In the middle, Swati Sharma, who really adds the poise that we all need as a full boy team. But not just that, there is so much of value that he adds upon. Zahid Hussain, who is by life and by wujud, if that's the right Urdu shabd, a British. And he was the most excited when he heard that we are performing at the Victoria Memorial. And he's also the one who corrects all the Urdu that we speak, all the Hindi that we speak. Zahid Hussain. And the glue that keeps us all sane and together. Izara Kaushik. Who, by the way, was the only one who memorized her lines. And thank you, all of you, for being an amazing audience. Yes. Yes. And I am Sukrit, Sukrit Singh. and people know me saying, but thank you so much for being a wonderful audience. I hope you will go back home with a little bit of more love for the city. Yes. And I hope every time you cross the different monuments, the different stories, the different waters that we mentioned, you look at all of them differently. If that happens, please spread the word. And we really look forward to meeting you all in a different Jalkatha, somewhere in the city. Thank you so much. And a special thanks to the Victoria Memorial team, Yes. to Sir, to Ashwini, who's been coordinating with me since the beginning, Sumit, who's been there handling all our tantrums whenever we we have to come to Victoria, and also the army, who's also responsible for our protection, because the entire theme, if you have understood, was also the fact that we wouldn't be if our city wasn't, or if our country wasn't. And I think the biggest round of applause should go to our army. Protecting us. Thank you so much, and a very good evening and a great week ahead. Thank you. Should we do a group